Hello students, in this lecture we will study the next continuity of a function, that is continuity of a function on its domain points, and such type of function is known as continuous function, as well as continuity on R, that is minus infinity to infinity, and a function is continuous on this interval, that is on set of R, then such type of function what we will say, everywhere continuous function. If you have not seen my lecture first on this topic continuity, please see it first and then continue with this lecture. So let us see the definition of continuity of a function on its domain point, that is continuous function. So how we will define? Definition second. Definition first I have explained, that is continuity of a function at a point in lecture 1. A real function f is said to be continuous. Under which condition we will say continuous? If it is continuous at every point in the domain of f. Now domain of f, so it is an interval, and whenever interval between any two real number, infinite real number lies, so how we can prove a function is a continuous function? And if this domain is a set of real number, then in place of continuous you can also use everywhere continuous function. Before this, some definition we will see, and then we will see how we will prove with the help of question. Continuous function. If the function f is continuous at every point of its domain, then f is said to be continuous function. There are some continuous function. In 11th class you have learned some of the standard function definition, their domain, range, and their graph, and their continuity also we are discussing. Some of the functions proof are given in example. A constant function is everywhere continuous. Everywhere continuous means on a set of real number. A polynomial function is everywhere continuous, that is on a set of real number. A rational function is continuous in its domain. So here we can use only the continuous function. We can't use everywhere. Everywhere is applicable when the domain is a set of real number. Logarithmic function is continuous on open interval 0 to infinity in its domains. Exponential function is everywhere continuous. Modulus function is everywhere continuous, that is on a set of real number. Trigonometric function are continuous in their domains. These all proof in example we will see as the concept is coming. According to that I will explain you. Just now in question I required a polynomial function is everywhere continuous. Its proof also I will explain you with an example. In this lecture we will discuss question number 6 to 13th concept. What they have asked it, find all the point of discontinuity of f where f is defined. Question 13 they gave the instruction is the function defined by is a continuous function. In its domain we have to check. Here only we have to find out the point of discontinuity. So how we will find out? In this question, how we will find out the point of discontinuity? Just now one of the common method I am discussing, then with the words how the presentation is changing, that I will discuss. यहाँ पे हमें कंटिन्यूटी चेक हमें पॉइंट फाइंड आउट करना है डिसकंटिन्यूटी के. फंक्शन कैसा दे रखा है, x इज लेस देन और इक्वल टू 2, तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी 2x प्लस 3. 2 पे भी क्या रहेगी 2x प्लस 3. ये कैसा फंक्शन है, पोलिनोमियल फंक्शन है. जैसे ही x की वैल्यू ग्रेटर देन 2 होगी तो फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी 2x माइनस 3. अगर पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी पूछ रहे हैं तो डायरेक्ट जहाँ पे फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हो रही है उस पॉइंट पे आप कंटिन्यूटी चेक कर लीजिए. अगर कंटिन्यूस है तो लिख दीजिए इट इज़ ए कंटिन्यूस फंक्शन. अगर डिसकंटिन्यूस है एट दैट पॉइंट सो यू विल राइट इट दिस पॉइंट इज द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी. इस बट इफ इट इज आस्क्ड डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन, तो आपको सारे डोमेन पॉइंट पे डिस्कस करना है. तो यहाँ पे मैं जो मेथड यूज़ कर रहा हूँ डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन कर रहा हूँ. और लास्ट में आपको बताऊँगा क्या क्या चेंजेस करना है. तो यहाँ सबसे पहले हम डिवाइड कर लेते हैं कितनी जगह फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हो रही है. तो हम लोग स्मॉलर टू ग्रेटर वी विल अप्रोच, लेस देन 2 हम कंसिडर कर रहे हैं. यहाँ रफ में हम देखते हैं इसकी डोमेन क्या है, माइनस इन्फिनिटी टू 2, क्लोज इंटरवल यूनियन 2 टू इन्फिनिटी मीन्स माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी पे डिफाइन है, पर 2 पे इसकी डेफिनेशन चेंज हो रही है. x इज लेस देन 2, देन एफ एक्स की वैल्यू क्या है 2x प्लस 3. ये किस प्रकार का फंक्शन है, पोलिनोमियल फंक्शन है.
हमने कोई रियल नंबर लिया है क्योंकि हमें प्रूव करना है ये कैसा फंक्शन है कंटिन्यूस, तो हमें कोई रियल नंबर लेना है, हम कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं ले सकते हैं या आर्बिट्ररी कांस्टेंट के फॉर्म में लेना है। लेट सी बी एनी रियल नंबर सच दैट सी इज लेस देन 2। अब हम लोग कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट की डेफिनेशन अप्लाई करें, लिमिट एक्सटेंड्स टू सी एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्सटेंड्स टू सी 2x प्लस 3 फंक्शन की वैल्यू रखी, लिमिट सब्सटीट्यूशन करा 2c प्लस 3 आया, एफ सी इज इक्वल टू 2c प्लस 3। सो व्हाट वी आर गेटिंग लिमिट वैल्यू ऑफ ए फंक्शन एट c इज इक्वल टू फंक्शन वैल्यू एट c 2c प्लस 3, तो फंक्शन कैसा हुआ, हैंस f इज ए कंटिन्यूस फंक्शन फॉर x इज लेस देन 2। इसी प्रकार से किसी भी पॉलिनोमियल फंक्शन को हम लोग कंटिन्यूस प्रूव कर सकते हैं और इसीलिए अभी हम लोगों ने एक थ्योरम देखी थी पॉलिनोमियल फंक्शन इज एवरीवेयर कंटिन्यूस। अब जितना हम लोग लिखने की जगह यहाँ पे एक और कंसेप्ट यूज़ कर सकते हैं, तो मैंने दोनों प्रकार की मेथड यूज़ करी है, आपकी जो इच्छा हो वो यूज़ कर सकते हैं। और वी नो दैट पॉलिनोमियल फंक्शन आर कंटिन्यूस फंक्शन, therefore fx is equal to 2x plus 3 for all x is less than 2 इज अ कंटिन्यूस फंक्शन। आप ये डेफिनेशन लिख दीजिए क्योंकि ये हमारे पास थ्योरम के फॉर्म में दे रखी है। एंड व्हाट इज द यूज ऑफ थ्योरम, थ्योरम स्टेटमेंट आर यूज टू प्रूव अनदर क्वेश्चन और अनदर थ्योरम्स। तो यहाँ पे हम लोगों ने डायरेक्ट कर दिया है, आप चाहें तो लिमिट लेके कर सकते हैं। केस सेकेंड, अब 2 पे चेक कर दें। जैसे ही हमें जो नंबर पे कंटिन्यूटी चेक करना है, अगर 2 जगह दिखे तो वहाँ लिमिट का LHL RHL का कंसेप्ट लगेगा। सो वी आर कैलकुलेटिंग द लिमिट LHL लिमिट एक्सटेंड्स टू 2 माइनस fx, ये नोटेशन है। अब हम नोटेशन हटा रहे हैं, लिमिट के फॉर्म में चेंज करें, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 f2 माइनस h। लिमिट का सबसे f रिमूव करा, f कैसे रिमूव होगा, तो लेस देन 2 पे क्या वैल्यू हो रही है 2x प्लस 3, यहाँ x की वैल्यू हमारे पास क्या है 2 माइनस h, सब्सिट्यूट करी 2 इंटू 2 माइनस h प्लस 3, लिमिट सब्सिट्यूशन करी h इज इक्वल टू 0, तो हमें क्या मिल रहा है 7। RHL कैलकुलेट करा सेम वे में, यहाँ माइनस की जगह प्लस साइन हो जाएगा, फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हो जाएगी क्योंकि ग्रेटर देन 2 पे हमारे पास क्या है x इज ग्रेटर देन 2 पे 2x माइनस 3। एज वी आर सब्सिट्यूटिंग 2 प्लस h माइनस 3, सब्सिट्यूट करा h इज इक्वल टू 0, तो हमारे पास क्या आया 4 माइनस 3 दैट इज 1। वट वी आर ऑब्जर्विंग LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, तो जैसे ही लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है, सो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, सो फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस। अंडर विच टू कंडीशन फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस, लिमिट इज नॉट एग्जिस्ट, सेकेंड लिमिट वैल्यू इज नॉट इक्वल टू फंक्शन वैल्यू एट द लिमिट पॉइंट। लेक्चर 1 में मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो हमें पहला पॉइंट मिला है पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी x इक्वल टू 2। अगर सिर्फ पूछे फाइंड द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, तो आप केस ना बनाते हुए सिर्फ 2 पे चेक कर दीजिए, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। पर अगर क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन, तो आपको सारे केसेस पे डिस्कस करना है, इसकी पूरी डोमेन पे आपको डिस्कस करना है, दैट इज माइनस इन्फिनिटी टू 2 यूनियन टू इन्फिनिटी। तो यहाँ जो मैं प्रेजेंटेशन कर रहा हूँ, यहाँ किस प्रकार से कर रहा हूँ, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन। अगर उनने बोला फाइंड द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, जिस कंसेप्ट पे ये क्वेश्चन पूछा है, तो यहाँ पे आपको सिर्फ ये व्हेन x इक्वल टू 2 यहाँ से यहाँ तक का प्रूव करना है और आखिरी में आपको आंसर लिखना है, देयरफॉर पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ f इज x इक्वल टू 2। पर अभी मैंने आपको लगातार बताते चल रहा हूँ कि हम लोग किस कंसेप्ट के साथ इस क्वेश्चन को समझ रहे हैं, फाइंड द डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन। तो अभी एक और हमारे पास इंटरवल है कि x की वैल्यू ग्रेटर देन 2 हो जाए, fx इज इक्वल टू अकॉर्डिंग टू द गिवन डेफिनेशन x इज ग्रेटर देन 2, तो फंक्शन की डेफिनेशन क्या हो रही है 2x माइनस 3। फिर से हम लोग लिमिट का कंसेप्ट नहीं अप्लाई कर रहे हैं क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग है। हमारे पास सिलेबस में थ्योरम दे रखी है कि पॉलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूस फंक्शन होते हैं, तो डायरेक्ट करेंगे सिंस f इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन एंड वी नो दैट पॉलिनोमियल फंक्शन आर कंटिन्यूस फंक्शन, हैंस f इज अ कंटिन्यूस फॉर ऑल x इज ग्रेटर देन 2। और आखिरी में आंसर लिखना है जो उन्हें पूछा है, देयरफॉर पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ f इज x इक्वल टू 2। अगर वो बोले फाइंड द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, आप सारे केसेस बना के करते हैं तो बहुत अच्छा है, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। पर अगर आप इतना भी करते हैं फाइंड द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी के सेकेंड, इतना करते हैं तो भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे क्योंकि आपने उनके अकॉर्डिंग फाइंड कर दिया है फाइंड द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो ये क्वेश्चन 2 प्रकार से आ सकता है, डिस्कस और डिस्कस में अगर आपने केस नहीं बनाए हैं केस 1 2 3 तो आपको फुल मार्क नहीं मिलेंगे। तो आप दोनों में अंतर समझिए।
समझिए, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन एंड फाइंड द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी में सिर्फ केस सेकेंड आएगा और डिस्कस में तीनों केसेस आएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं ये रीजन नहीं लिखूंगा, एफ इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन एंड वी नो दैट पॉलिनोमियल फंक्शन आर कंटिन्यूअस फंक्शन, हेंस एफ इज कंटिन्यूअस। नेक्स्ट सारे क्वेश्चन में बोलूंगा सेम रीजन एज अबाव एक्सप्लेन, तो आपको खुद लिखना है, आप नहीं लिखेंगे कॉपी में। हम लोग कई बार शॉर्टकट लिख देते हैं, यू हैव टू डू द प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग ऑल दिस रीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, एफ एक्स, यहाँ पे 3 जगह फंक्शन की अलग अलग डेफिनेशन दे रखी है। लेस देन -3 पे mod x + 3 है। इफ x इज ग्रेटर देन -3 लेस देन 3 तो -2x है, एक पोलिनोमियल फंक्शन है। x इज ग्रेटर देन 3 6x + 2। तो अगर आपको पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी चेक करना है तो डायरेक्ट किस किस पे चेक कर लीजिए, जहाँ पे फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हो रही है -3 3। पर मैंने आपको बताया हम किस प्रकार से करेंगे, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन, तो केसेस बनाएंगे। फंक्शन कितने प्रकार से अलग अलग जगह चेंज हो रहा है, तो लेस देन -3 पे क्या हो रहा है, mod x + 3। यहाँ पे आप मॉड हटा सकते हैं क्योंकि x इज लेस देन 0, तो आप लोगों ने 11th क्लास में डेफिनेशन पढ़ चुके हैं, ये मॉड का में बदल जाएगा -x + 3। Now it is a polynomial function, same reason as above, you have to write it, ये पूरा रीजन लिखना है। f is a polynomial function and we know that polynomial function are continuous function, hence f is continuous for all x is less than -3। तो यहाँ पे कोई भी हमें पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी नहीं मिला है। हम नेक्स्ट अप्रोच करेंगे, लेस देन -3 पे कहाँ पे जाएंगे, अब -3 पे, क्योंकि -3 दो जगह दिख रहा है, तो यहाँ LHL RHL का कंसेप्ट, व्हेन x इज इक्वल टू -3 तो यहाँ LHL RHL का कंसेप्ट लगेगा। ऑलरेडी लेक्चर 1 में मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ कैसे कैलकुलेट करना है लिमिट एट ए पॉइंट। सो लिमिट x टेंड्स टू -3 माइनस fx दैट इज LHL, लिमिट h टेंड्स टू 0 -3 माइनस h। अब हम लोग फंक्शन की डेफिनेशन अप्लाई करेंगे, लेस देन -3 पे फंक्शन क्या है, mod x + 3। हमने डेफिनेशन अप्लाई करी तो क्या हमें मिला, सब्सिट्यूट करें x की वैल्यू, -3 माइनस h, माइनस साइन कॉमन लिया, मॉड माइनस साइन को प्लस में बदल देता है, हमें क्या मिला 3 + h + 3, h की वैल्यू रखी 0 6। RHL लिमिट x टेंड्स टू -3 + fx, लिमिट h टेंड्स टू 0 f -3 + h। यहाँ पर हम लोगों ने फिर से f को रिमूव करा है। What is the definition of f when x is greater than -3 -2x, x की वैल्यू रखी, लिमिट की वैल्यू सब्सिट्यूट करी, हमें 6 मिला। LHL इज इक्वल टू RHL, सो लिमिट h टेंड्स टू -3 fx इज इक्वल टू 6 एग्जिस्ट। Now we will calculate f -3 as we are calculating f -3, what we are getting 6, limit x tends to -3 fx is equal to f -3 is equal to 6, so f is continuous at x equal to -3। तो फंक्शन कैसा मिला, continuous। केस थर्ड, when x is greater than -3 and less than 3 fx is equal to -2x, सेम रीज़न अभी मैं ऊपर बता चुका हूँ क्या लिखना है, it is a polynomial function and polynomial function are everywhere continuous, so fx is continuous when x is greater than -3 and less than 3। तो अभी तक के कोई भी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी नहीं मिला है। नेक्स्ट आगे अप्रोच कर रहे हैं स्मॉलर टू ग्रेटर, हम लोगों ने -3 से 3 के बीच में चेक कर लिया। अब 3 पे भी फंक्शन की 2 डेफिनेशन मिल रही है, तो यहाँ डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं, यहाँ LHL RHL का कंसेप्ट लगेगा। व्हेन x इक्वल टू 3 LHL लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस fx, लिमिट h टेंड्स टू 0 f3 माइनस h। कैलकुलेट करी लिमिट -6, RHL कैलकुलेट करा 20, LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, सो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, हैंस f इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3। हमें पहला पॉइंट मिला है पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, और टोटल केसेस कितने बन गए 4। और अब आगे बढ़ते हैं, 3 पे आ गए ग्रेटर देन 3, सो व्हाट वी आर गेटिंग, x इज ग्रेटर देन 3 fx इज इक्वल टू 6x + 2। फंक्शन की एक ही डेफिनेशन मिल रही है, एक ही एक्सप्रेशन मिल रहा है, यहाँ वर्ड यूज़ कर सकते हैं, इट इज़ एन एक्सप्लिसिट फंक्शन इन दिस वे। यहाँ इट इज़ ए पोलिनोमियल फंक्शन एंड पोलिनोमियल फंक्शन इज अ everywhere continuous, so the given function when fx is equal to 6x + 2 when x is greater than 3 is a continuous function, so the point of discontinuity of f is x equal to 3। फाइनल आंसर नहीं लिखना मत भूलिएगा, क्योंकि जैसा उनने क्वेश्चन में पूछा है डिस्कस और फाइंड आउट द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, उसके अनुसार आपका आंसर रहेगा।
क्वेश्चन नंबर 8 to 13 इसी कंसेप्ट के ऊपर है, प्लीज़ कंप्लीट इट। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना परफेक्शन आएगा। जो भी आपके डाउट हैं आप लोग पूछ सकते हैं। आई होप ऑल ऑफ यू गॉट इट। थैंक यू।